Hello everyone. In the last lecture we discussed about force and laws of motion. In this chapter we are going to complete the whole chapter number 9 gravitation in one shot. But before starting this chapter, the few terminologies of last chapter must be understood to you. What we have learned in the last lecture is what is force, what is balanced and unbalanced force, what is laws of motion, first law, second law, and third law, and inertia, momentum, and the respective applications. These are the things that we have understood in the last lecture, in the last chapter. Now, let me tell you, in physics, all the chapters are interconnected. Okay? तो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो watch that video first. Only then you will be able to understand this chapter. In this chapter, we are going to study one more very important, interesting force, which is gravitation force. Okay, so without wasting time, let's start. The question arises, whenever you see objects fall on the earth, what is the force behind that? What is the force behind moon revolving around the earth? All the planets revolve around the sun. Now what is the reason behind it? The answer is gravitation or gravitational force. For example, if you will throw any object upward, what will happen? कि थोड़ा टाइम तक ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा एक हाइट तक, फिर धीरे धीरे वापस नीचे आएगा. क्यों भाई, नीचे क्यों आ रहा है? फिर again one more question arises is why all the planets are revolving around the sun? Why even the natural satellite moon is revolving around our earth? What is the reason behind that? The reason is there might be some attraction, and that attraction leads to all this phenomena, you can say. Now let's do an experiment to better understand these phenomena. Take a ball or take an object, you can say, tie it with a thread. ठीक है, thread के साथ बांध दिया, यहाँ पे वो stone है, center से पकड़ लो. Now start rotating it, start doing like this. That is called as whirl. ऐसे करके आप घुमा रहे हो. अब क्या होगा कि अगर ध्यान से देखो तो थ्रेड से जो ये ऑब्जेक्ट होगा ना, वो एक सर्कल बनाएगा. क्लियर? सर्कुलर मोशन में मूव करेगा. लेकिन जैसे ही आप कहीं एक पॉइंट पे उसे रिलीज कर दोगे तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जाएगा. तो जब तक आप सेंटर से फोर्स दे रहे थे तब तक वो सर्कल कंटिन्यू बना रहा था. लेकिन जैसे ही आपने सेंटर से फोर्स छोड़ दिया, उसका मोशन कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन. ओके, तो जब तक वो सर्कल में घूम रहा था, इफ यू रिमेम्बर व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक चीज उसमें आपने पढ़ी थी कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? चेंज, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग. वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या है? अलग अलग. कैसे पता चलेगा? हर बार छोड़ो आप तो कभी उस तरफ जाएगा, कभी उस तरफ. मतलब हर पॉइंट के अलोंग जो आप टेंजेंट बनाओगे वो उसकी क्या हो जाएगी? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन. मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है. इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग, वी कैन से दैट इट हैज सम velocity also changing, maybe. Yes. Now that particular force which is from the center, that's why it is called as centripetal force. अब ये force कौन सा था? Human force, you can say, कि जो सेंटर से लग रहा था और जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा था. लेकिन जैसे ही सेंटर से फोर्स लगना बंद किया, ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? सीधा स्ट्रेट लाइन. If you remove that force, you will see the object in different motion. यही सेंट्रिपिटल फोर्स या फिर यू कैन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फेनोमेना अकरिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. कि भाई कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. बट व्हाई ऑब्जेक्ट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? द रीजन इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स व्हिच इज अ अट्रैक्टिव फोर्स. ऐसा फोर्स जो सेंटर से लग रहा है और अट्रैक्टिव है. दैट इज आवर ग्रेविटेशनल फोर्स. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब पहले तो नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि क्यों भाई यूनिवर्सल. सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे देते या फिर न्यूटन्स फोर्थ लॉ नाम दे देते, बट इट इज अ डिफरेंट थियरी. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर यू कैन से ऑल द प्लेसेस इन द होल यूनिवर्स. इट इज वैलिड. ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ पे किसी पर्टिकुलर प्लैनेट पे इट इज वैलिड. इट इज वैलिड इन होल यूनिवर्स. दैट्स व्हाई द लॉ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. व्हाट डज इट चेक? देखो यहाँ पे हमने जितने भी एग्जांपल लिए थे, ऑब्जेक्ट और अर्थ या फिर अर्थ और मून,
सन और डिफरेंट प्लैनेट्स या फिर सन और अर्थ, ये सारे एग्जांपल लिए थे। बट कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, वो दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब वो अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी गिवन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या स्टेट करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अब ये तो स्टेटमेंट हो गई, समझो स्टेटमेंट क्या कह रही है। कोई दो ऑब्जेक्ट है जैसे, ठीक है, हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिए, एक का मास है कैपिटल एम, बड़ा है इसलिए, और छोटा जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास ले लिया अपन ने स्मॉल एम। दोनों के बीच सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस अपन ने लिया है क्या, स्मॉल डी। तो F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, वो फोर्स दोनों का मास बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, और वो फोर्स दोनों का डिस्टेंस घटाओगे तो बढ़ेगा। सीधी सी बात है, दो ऑब्जेक्ट नजदीक होंगे तो ज्यादा होगा, दूर होंगे तो फोर्स कम होगा। तो जैसे ही आप डिस्टेंस घटा रहे हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीजेस। अब दो अलग अलग इक्वेशन है, दोनों को कंबाइन करो, यू विल गेट F प्रोपोर्शनल टू m अपॉन d स्क्वायर। अब ये जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है, यू हैव टू पुट द कांस्टेंट, इन दिस केस द कांस्टेंट इज कैपिटल G. What is this capital G? It is not only the proportionality constant, but it is the universal gravitation constant. ध्यान रखना है, कैपिटल G is universal gravitation constant। इस फॉर्मूला में आएगा फोर्स, और ये फोर्स कौन सा है, that force is the force due to gravity, और you can say gravitational force की फॉर्मूला मिल गई हमें। अब फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स का यूनिट यू नो, मास का यूनिट भी पता है, डिस्टेंस का यूनिट भी पता है, then you can calculate the unit of capital G। क्या होगा कैपिटल G का यूनिट, तो फॉर्मूला में क्या करना है, कैपिटल G को सब्जेक्ट बना लो, you will get F into d square upon m into m। अब जिसके भी यूनिट पता है F D M, यूनिट रख दो, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, बट देयर इज अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यू विल पुट मीटर स्क्वायर, मास का यूनिट kg, मास into मास, दैट्स व्हाई kg स्क्वायर। ओके, नाउ there is a scientist named Henry Cavendish who founded the value of this G। क्या वैल्यू मिली इस कैपिटल G की, 6.67 into 10 raised to minus 11, यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये वैल्यू मिली कैपिटल G की, विच इज अ कांस्टेंट। नाउ अब ये जो फोर्स पढ़ा अपन ने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बहुत सारे जो नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं उसका आंसर है, उसका रीजन है। द रीजन इज कि भाई फोर्स बिटवीन अस और फोर्स बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट इन द ऑन एंड द अर्थ, कौन सा फोर्स है, और क्या रीजन है, व्हाई मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, व्हाई अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड व्हाई टाइड्स हैपन ड्यू टू मून एंड सन। ऑल दिस क्वेश्चन हैव अ सिंगल आंसर, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल दिस फेनोमेना इज occurring in nature। Coming to the next topic, that is free fall। देखते हो आप कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली छोड़ दो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। अब पहले तो फ्री फॉल समझो कि जब भी आप फ्री फॉल कर रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट को, तब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना है, फ्रीली आपको एक हाइट पे ले जाना है और अपने आप वो नीचे आएगा, अर्थ की सरफेस पे होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट उसे अट्रैक्ट कर लेगा। बेसिकली अर्थ विल अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, तो ऊपर से ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे। कौन सा फोर्स लग रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली द ऑब्जेक्ट विल मूव इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फ्री फॉल में कहाँ पे आएगा डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड। सिर्फ Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अभी हमने पढ़ा वही लग रहा होगा। अब जब भी फ्री फॉल हो रहा है, टेल मी, क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, नहीं, it will move in continuously vertically downward direction in this case, but क्या velocity change हो रही है? The answer is yes, because of the earth's gravitational force the velocity of an object will keep on increasing। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से छोड़ोगे ना, अभी वेलोसिटी क्या है, जीरो, लेकिन जैसे 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 वो नीचे आ जाता जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पहुंचने वाला होगा तब तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल इट इज द ग्राउंड सरफेस,
यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर कोलिजन की वजह से वेलोसिटी वापस जीरो। दैट इज ऑल अबाउट चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जैसे ही चेंज होती है क्या आता है पिक्चर में? एक्सेलरेशन। करेक्ट, लास्ट वीडियो देखा होगा तो यू विल रिमेंबर दैट change in velocity lead to acceleration. Basically rate of change in velocity is acceleration. अब ये acceleration किसकी वजह से है? Gravitational force की वजह से, gravity की वजह से. That's why it is called as. Now we will call A as G whenever we are talking about the heights. कि हाइट के रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है, हाइट के रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, तब जो ऑब्जेक्ट पे नीचे एक्सेलरेशन लगेगा किसकी वजह से लग रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब उस एक्सेलरेशन को मैं क्या नाम दूंगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये इस एक्सेलरेशन को मैं ए ना कह के क्या कहूंगा? जी। है तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जी। अब जी है तो ऐसा यूनिट भी तो फाइंड करना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द सेम ऐसा यूनिट विल बी ऑफ जी एज इट इज एक्सेलरेशन ओनली, सो न्यूमेरिकली तो ऐसा यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं वापस। आपने एक स्टोन लिया, उसका मास है स्मॉल m, फॉर एग्जांपल मास है स्मॉल m। अब अर्थ की सरफेस के नजदीक है तो अर्थ उसे नीचे खींचेगी, ठीक है। अब जब अर्थ उसे नीचे खींचेगी तो जो एक्सेलरेशन लगेगा उसे मैं अब क्या लूंगा? जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ही लूंगा। ओके, तो इफ यू रिमेंबर द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन, we have derived the mathematical formula of second law which is F is equals to ma, पता ही होगा। अब a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? g। क्यों? because the acceleration is due to gravity, acceleration due to gravity की जगह means you will put g। जैसे ही g रखोगे पता चलेगा आपको F is equals to mg, और we have another equation which is of universal law of gravitation, F is equals to gmm by डी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों फोर्स की इक्वेशन है। तो वी कैन कंपेयर द इक्वेशंस। जैसे ही कंपेयर करोगे दोनों इक्वेशन को, अब यहाँ पे देखो कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट, और इस केस में वो बिगर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अर्थ। और दूसरा स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो एक्सीलरेशन, ज्यादा एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा, उसका मास। दोनों का कंपैरिजन करेंगे अपन, एम एम cancel, you will get the formula for gravitational acceleration g, which is capital G capital M upon d square। अब इस ध्यान से देखो, कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है 6.67 into 10⁻⁻11। अर्थ पे ही नहीं, कहीं पे भी चले जाओ कांस्टेंट। बट ये स्मॉल g की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? कैपिटल G कैपिटल M, और ये d स्क्वायर। d स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अब कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, चलो मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं हो रहा, कैपिटल जी भी चेंज नहीं हो रहा, बट दिस डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो सकता है। जैसे ही डिस्टेंस चेंज होगा कैपिटल जी कैन ऑल्सो चेंज। अब अर्थ इज नॉट अ प्रॉपर स्फीयर। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम क्या कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो हम क्या डिस्टेंस ले लेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हुआ भी, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट है अर्थ, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ माय बॉडी। मतलब क्या बना? रेडियस ऑफ अर्थ ओनली। सेंटर से लोगे और सरफेस तक आओगे तो रेडियस ऑफ अर्थ ही बनेगा। अब ये रेडियस ले लेंगे या डी की जगह आर। अब चलो हमने क्या किया? डी की जगह आर रख दिया, तो वी विल गेट जीएम बाय आर स्क्वायर। जब भी आप प्रोसेस या फिर एक्सपेरिमेंट अर्थ के सरफेस के ऊपर बैठ के कर रहे हो, यू कैन रिप्लेस जीएम बाय आर स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट नाउ वी आर इनटू सम कंडीशंस, कुछ स्पेशल केस रह गए अपन, तो आर आपने रिप्लेस कर दिया। अब पहले तो वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, बट टेल मी, इज अर्थ अ प्रॉपर स्फीयर? नो, पता है अर्थ प्रॉपर स्फीयर नहीं है, सेंटर से थोड़ा ओवल शेप टाइप है, ओके, इलिप्सोइडल शेप यू कैन से। मतलब क्या है कि जो इक्वेटर पे रेडियस है और जो पोल्स पे रेडियस है वो दोनों अलग अलग है। इक्वेटर पे रेडियस क्या है? ज्यादा, और पोल पे रेडियस क्या है? कम। ध्यान से देखो, जैसे ही रेडियस चेंज होगी स्मॉल जी की वैल्यू भी अलग अलग होगी दोनों जगह, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन क्या होगा? अलग अलग। अब देखो जहां पे भी रेडियस ज्यादा होगी मींस ऑन इक्वेटर द रेडियस इज मोर, ये देखो इनवर्स रिलेशन है।
जैसे ये क्वांटिटी बढ़ती है, ये क्वांटिटी घटती है डिवीजन में, मैथमेटिकली इफ यू नो। जैसे ही रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ेगा ऑन इक्वेटर, रेडियस इज मोर, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन विल बी लेस ऑन इक्वेटर। और पोल्स की बात करो तो वहां पे रेडियस ऑफ अर्थ विल बी लेस, रेडियस ऑफ अर्थ कम होगी तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा। अब तो सर ये वैल्यू कहां से आई, ये वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की हम कांस्टेंट वैल्यू ही लेंगे, बट दैट कांस्टेंट वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। इक्वेटर पे, पोल्स पे, सब जगह वैल्यू कैलकुलेट कर ली अर्थ की और इनका क्या निकाल लिया, एवरेज। दैट एवरेज वैल्यू इज 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, जी एम आर स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है ना, उसमें ऑब्जेक्ट का मास आ ही नहीं रहा है, स्मॉल एम था ना ऑब्जेक्ट का मास, वो तो कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल एम इज नॉट प्रेजेंट इन द इक्वेशन, व्हिच मींस कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सपोज ले लो एक का मास बहुत ज्यादा है, एक का मास बहुत कम, ठीक है, दोनों का मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। अब दोनों को जब आप फ्री फॉल करोगे ना, इफ यू विल डू द फ्री फॉल, तो कौन सा फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को नीचे खींचेगा, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे आपने कि एक कोई सॉलिड स्फीयर ले लिया और एक तरफ लीफ ले लिया, क्या प्रूव करने के लिए कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्फीयर है, सीधी सी बात है, उसका मास क्या होगा, ज्यादा, और जो लीफ है छोटी सी, उसका मास क्या होगा, कम। दोनों को छोड़ोगे तो दोनों एक साथ एक टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। द रीजन इज ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन इज सेम इन बोथ द केसेस। अब यही एक्सपेरिमेंट किसने किया, लेकिन इफ यू विल डू द एक्सपेरिमेंट, दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे, स्फीयर पहले पहुंच जाएगा और लीफ तो धीरे 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 पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब एयर रेजिस्टेंस भी तो लगेगा, एयर रेजिस्टेंस भी तो लगेगा ऊपर की डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स तो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बट ऊपर की डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा। तो यू हैव टू कीप दैट आल्सो इन माइंड, तभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नाउ द सेम एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय गैलीलियो। क्या किया गैलीलियो ने, गया वो लीनिंग टावर ऑफ पिसा पे, लीनिंग टावर ऑफ पिसा के ऊपर गया और वहां से उसने अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स को फ्री फॉल करना स्टार्ट किया, देखने के लिए कि भाई एक टाइम पे पहुंच रहे कि नहीं। बट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस ही may not get the required result. So what we have learned from this topic, from free fall, that the gravitation acceleration can be calculated and it is independent of mass of an object. अब थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या देखा था अपन ने, कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर एक्सेलरेटेड मोशन है, ओनली देन यू कैन यूज थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। उस चैप्टर में भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन या फिर खाली एक्सेलरेशन ले लो, जब उसकी वैल्यू कांस्टेंट है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तभी आप वो तीन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो कोई भी न्यूमेरिकल पे। क्या थी वो तीन इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square minus u square is equals to 2as. Symbols have their usual meanings. अब इस इक्वेशन में जो a है वो क्या है, एक्सेलरेशन, लेकिन whenever you are doing an experiment in which you are doing free fall or something on the surface of earth, उसी एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हो, g से। तो जहां जहां भी a है वहां पे g आ जाएगा, लेकिन g की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, which was calculated as 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलो g की वैल्यू कांस्टेंट है, दिक्कत कहाँ पे आएगी, साइन ऑफ g, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हो, कहीं पे नीचे थ्रो कर रहे हो, तो g की वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। नोट इट डाउन कि जब भी वेलोसिटी और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन g दोनों की डायरेक्शन सेम हो, और कुछ नहीं याद रखना है, सेम डायरेक्शन हो, तब g की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। लास्ट चैप्टर में भी मैंने कहा था। और जब भी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन g और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन g एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी v और g दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विल बी टेकन एज नेगेटिव। सेम डायरेक्शन तो g पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन तो g नेगेटिव। अब देखो, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे अब पता चलेगा आपको कहाँ कंफ्यूजन होगा। और
फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे, डायरेक्शन सेम, तो एक्सीलरेशन जी क्या लेना है, पॉजिटिव। अब इसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो कर रहे हो लेकिन एक्सेलरेशन क्या लगता है हमेशा नीचे, टुवर्ड्स द अर्थ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जी की डायरेक्शन नीचे, लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हुई, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऊपर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो जी क्या लेंगे, नेगेटिव। सेम डायरेक्शन तो जी पॉजिटिव, जी और वी की ऑपोजिट डायरेक्शन तो जी नेगेटिव, बस यही याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मास वर्सेस वेट। अब ये जो हमने जी की वैल्यू ली थी, ठीक है, विच वाज कांस्टेंट वैल्यू थी, तो यू कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, वहां पे प्लस और माइनस का ध्यान रखना है आपको बस। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, यूजुअली तो अपन मास और वेट को एक जैसे यूज कर देते हैं, किसी का मास ये है, किसी का वेट ये है, बट इन फिजिक्स मास एंड वेट इज डिफरेंट। So what is mass? Mass is nothing but what is the inertia of an object. Inertia पढ़ा होगा आपने लास्ट चैप्टर में ड्यूरिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या था इनर्शिया? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज। छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, छोटा सा, थोड़ा फोर्स दोगे हिल जाएगा, लेकिन बड़ा ऑब्जेक्ट है लाइक दिस वॉल, रेजिस्टेंस क्या है, बहुत बड़ा, मतलब रेजिस्टेंस मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट। इनर्शिया क्या है, बहुत ज्यादा, उसको उतना फोर्स दोगे नहीं हिलेगा। इसी मास या फिर इनर्शिया के मेजर को कहा जाता है मास, जिसका ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अब ये मास की वैल्यू अर्थ पे मेजर करो, बिकॉज इट इज द एक्चुअल कंटेंट, एक्चुअल मैटर कितना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मास अर्थ पे कहीं पे भी आप मास मेजर करो, या फिर किसी और प्लैनेट में जाओ, आउटर स्पेस में चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, द वैल्यू ऑफ मास विल बी कांस्टेंट, इट विल बी सेम, मेजर करोगे तो सेम आएगी, सो इट डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। व्हाट इज द एसआई? जब भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी वी हैव टू मेंशन द एसआई यूनिट, और याद भी रखते जाना है साथ साथ। क्या है एसआई यूनिट मास का? केजी। ओके, व्हाट वाज द अदर फिजिकल क्वांटिटी? वेट। क्या डिफरेंस है? पहले तो चलो, जब भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे थे जिसका मास था m, फ्री फॉल कर रहे थे, एक्सीलरेशन लग रहा था नीचे स्मॉल g, फोर्स क्या लगेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू m a की जगह क्या रखोगे इस फ्री फॉल में, स्मॉल g, F इज इक्वल्स टू mg। यही जो F लिया ना आपने mg की जगह, उसी फोर्स को कहा जाता है वेट। तो वेट इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज वेट। फोर्स की जगह W रख दोगे, मतलब जो यूनिट फोर्स का होगा दैट विल बी द यूनिट ऑफ वेट, बिकॉज वेट एक टाइप का फोर्स ही तो है जो आपको नीचे खींच रहा है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। वेट का यूनिट इज ऑल्सो न्यूटन, बट द वैल्यू ऑफ वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों भाई? अब ये देखो जी पे डिपेंड कर रहा है, वेट m और g पे डिपेंड कर रहा है। चलो m तो कांस्टेंट है, क्या g कांस्टेंट है? जी की वैल्यू यहाँ पे ली थी अपन ने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर याद करो अर्थ इज नॉट अ प्रॉपर स्फीयर, ये तो एवरेज वैल्यू है जिसको आप कांस्टेंट मान रहे हो, बट इन एक्चुअल, इन प्रैक्टिकल इट वेरीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। अलग अलग जगह पे जी की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी, और सीधा प्लैनेट ही चेंज कर दो आप तो उसका तो मास अलग है, तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन भी अलग होगा, सीधी सी बात है। चलो, द स्मॉल g डिपेंड्स ऑन m, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन स्मॉल g। ध्यान से देखना, तो जैसे ही यहाँ पे m क्या था, मास ऑफ द प्लैनेट, तो जैसे ही मास ऑफ द प्लैनेट चेंज होगा स्मॉल g की वैल्यू चेंज होगी, जैसे ही स्मॉल g की वैल्यू चेंज होगी वेट चेंज होगा। तो मतलब आप अर्थ पे कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, उसका कुछ g होगा, अर्थ का कुछ मास है, उसकी वजह से आपको कुछ वेट मिलेगा। अब मून पे जा रहे हो तो मून का मास क्या है, कंपैरेटिवली लेस, वहां पे मास कम है, तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, मून का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम होगा, जी की वैल्यू कम तो वेट भी कम हो जाएगा। ओके, मींस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और प्लैनेट टू प्लैनेट। क्लियर? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन स्मॉल g and small g depends on capital M, which is mass of the planet.
अब ध्यान से देखो, वेट है, फोर्स लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और वेट, क्या डायरेक्शन होगी इस पर्टिकुलर वेट वाले फोर्स की। ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, ऊपर से फ्री फॉल करो तो नीचे, तो डायरेक्शन क्या होगी वेट की, वर्टिकली डाउनवर्ड, और यूनिट हो जाएगा न्यूटन। अब चलो एक कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। इफ यू नो द वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट द वेट। पहले अपन वेट कैलकुलेट करेंगे अर्थ पे, ठीक है, तो अर्थ पे आप वेट कैलकुलेट पता ही होता है आपको अपना वेट, ठीक है। नाउ इफ यू विल go to moon somehow and if you will measure your weight and if you will compare or divide your weights on moon, weight of an object on moon and weight of an object on earth, you will get a value 1/6। समझो इस वैल्यू को कि अगर आपका वेट ऑन अर्थ है 60 kg, ठीक है, तो 60/6 करोगे what you will get 10 kg, तो आपका वेट मून पे क्या हो जाएगा 10। 6 टाइम्स वेट क्या हो जाएगा reduce। अब ये वैल्यू कहां से आई 1/6, by putting the values you will get the weight of an object, ओके। ये रेशियो मास फिर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ये सब का कैलकुलेशन है पूरा। इफ यू विल पुट दोज वैल्यूज यू विल गेट दिस इक्वेशन, यू कैन सी। अब 60 की जगह आप रख दो 600, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट क्या है 600, तो 600/6 kg बोला था मैं, न्यूटन विल बी द ऐसा यूनिट। हाँ, तो 600/6 रखोगे तो वी विल गेट 100, तो 100 न्यूटन का वेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ऑन मून। अब रीजन भी है इसके पीछे। अब बेसिकली वेट क्या है, स्मॉल जी पे डिपेंड करता है, मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे, या फिर फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कितना लग रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा लगेगा, जी उतना ज्यादा, वेट उतना ज्यादा। लेकिन मून पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, कम, मास ऑफ मून इज लेस, स्मॉल जी की वैल्यू इज ऑल्सो लेस, सो वेट विल ऑल्सो बी लेस। कितना लेस कि जितना भी आपका वेट है ना, डिवाइडेड में क्या कर देना है 6। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, so before starting the next topic we have some questions in our mind कि भाई क्या क्वेश्चन हो सकता है। कि आपने देखा होगा कि if you will run in a desert, तो if you have ever seen that camels can run easily, ऊंट easily दौड़ लेते हैं, but if we will run it will be hard for us to run, okay, one question। second, the trucks have wider tires, छोटी सी कार है तो उसके टायर्स भी छोटे होंगे, लेकिन बड़ी कोई ऑटोमोबाइल या व्हीकल है तो उसका टायर क्या होता है, बहुत वाइड, बड़ा, चौड़ा, यू कैन से। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। एंड इफ यू हैव सीन दैट, कभी किचन में गए हो तो पता होगा, जो भी कटिंग टूल्स है उनकी जो एजेस होती है कैसी होती है, वेरी शार्प। तो वी विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द अपकमिंग टॉपिक, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब थ्रस्ट क्या है पहले ये समझो। एक सरफेस है, चलो यही बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, इसको मुझे फोर्स लगाना है, ऐसे भी फोर्स लगा सकता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां से भी लगा सकता हूँ, ऊपर से भी लगा सकता हूँ, नीचे से भी लगा सकता हूँ, बहुत सारे फोर्सेस लगा सकता हूँ। उसमें से एक फोर्स ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट इस तरह से फोर्स लगाओ, इस तरह से, विच मीन्स आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको क्या कहा जाता है, 90 डिग्री पे फोर्स लगाना। ये क्या है, फोर्स सरफेस पे 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। जब भी 90 डिग्री पे फोर्स लगे ना, दैट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स, बस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन अ सरफेस बाय एन ऑब्जेक्ट, बट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर फोर्स को ही थ्रस्ट कहा जाता है। और प्रेशर क्या आता है, इट इज द रेशियो ऑफ दिस परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द यूनिट एरिया। कि भाई एक यूनिट एरिया पे 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 यूनिट स्क्वायर, कोई भी यूनिट हो उसका स्क्वायर, एक यूनिट एरिया पे कितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, और परपेंडिकुलर फोर्स ही क्या था, थ्रस्ट। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज योर प्रेशर। ध्यान क्या रखना है, फोर्स परपेंडिकुलर की बात हो रही है। अब इट हैज सो मेनी एप्लीकेशंस। इन सिचुएशन 1 देखा होगा कि आपने वो थंब पिन होती है ना, तो उस पर आप फोर्स कैसे लगाते हो, जब भी आप कोई पोस्टर या कुछ लगा रहे हो दीवार पे, बोर्ड पे, यू विल यूज द फोर्स लाइक दिस, थंब पिन पे। कहीं और से फोर्स लगाओगे तो उतना परफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यू विल यूज थ्रस्ट
परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे थंब पिन में। और इन सिचुएशन 2 आपने देखा होगा, अभी वो सैंड वाला एग्जांपल लिया था कि आप सीधे खड़े रहोगे सैंड पे, तो आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, आपके 2 फुट इतना ही एरिया है वो। उसकी वजह से क्या होगा, सीधे खड़े रहोगे तो ज्यादा अंदर जाता है बॉडी सैंड के अंदर। लेकिन आप अगर इफ यू लाई ऑन द सैंड, सो जाओ, तो क्या होगा, आपका बॉडी कम धसेगा सैंड के अंदर। द रीजन इज दिस इक्वेशन। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितना एरिया आपका कांटेक्ट में, पूरे बॉडी का एरिया नहीं लेना है, जो भी 2 सरफेसेस के बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना, उतना ही लेना है। जब आप खड़े थे तब एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या था, कम। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, इनवर्स रिलेशन, एरिया इज लेस, प्रेशर विल बी मोर। लेकिन जैसे ही आप इफ यू लाई ऑन द सैंड, द एरिया विल बी मोर, प्रेशर विल बी लेस। तो बहुत सारे आपने देखे भी होंगे ट्रिक्स कि भाई वहां पे लोग बहुत सारे खेल करते हैं, वेरी डेंजरस। उसमें आपको लॉजिक क्या लगता है, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट। इफ यू विल इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट, द प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। नया जब भी फिजिकल क्वांटिटी आता है, यू हैव टू स्पेसिफाई द यूनिट। अब थ्रस्ट क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है ना, परपेंडिकुलर फोर्स, तो यूनिट क्या होगा थ्रस्ट का, न्यूटन। प्रेशर का यूनिट क्या होगा, चलो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का क्या होता है ऐसे यूनिट, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द, यू कैन से ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो है, लेकिन साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में भी एक यूनिट होना चाहिए। तो दैट यूनिट बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल। तो यूनिट क्या हो गया प्रेशर का, पी से यूनिट है, दैट इज पास्कल, कैपिटल पी स्मॉल ए, पी ए इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। वैसे तो बहुत सारे यूनिट है, बट दैट इज द यूनिट ऑफ पास्कल बेस्ड ऑन ब्लेज पास्कल। Coming to the next topic, which is related to pressure only, but related to fluids. अब यहाँ पे हमने जितने भी एग्जांपल लिए थे प्रेशर के, उसमें अपन ने सॉलिड एज्यूम किया था, किसी ने भी लिक्विड एज्यूम नहीं किया होगा। ओके, क्या फ्लूइड प्रेशर लगाता है? चलो, तो व्हाट इज फ्लूइड? बेसिकली ऑल द, यू कैन से द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो, जो भी फ्लो हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। तो कौन कौन सी चीजें इन जनरल यू कैन से फ्लो हो सकती है? तो लिक्विड्स कैन फ्लो, गैसेस कैन फ्लो। अब लिक्विड को भी आप पानी को नीचे रखोगे हॉरिजॉन्टल सरफेस तो फ्लो कर जाएगा, कोई भी लिक्विड हो, करेगा ही, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा। तो लिक्विड्स कैन फ्लो, तो लिक्विड क्या है, लिक्विड में वाटर ऑयल सब आ गए, फ्लूइड। गैसेस को भी जैसे ही आप रिलीज कर देते हो तो वो तेजी से फ्लो कर जाता है, तो गैसेस आर आल्सो फ्लूइड। तो लिक्विड, गैसेस आर फ्लूइड्स। ओके, सॉलिड फ्लूइड नहीं है, सॉलिड एंड फ्लूइड आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये फ्लूइड क्या प्रेशर लगाता है, ये समझने के लिए आप एक बोतल ले लो, चलो प्लास्टिक की कोई भी। अब प्लास्टिक की बोतल के अंदर पानी भर दो पूरा। अब क्या करना है कि जब भी आप होल करोगे तो एक ही फोर्स लगेगा उस पानी पे, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पानी कहाँ आ जाना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए ना। कि जैसे आप होल करोगे ना, पानी डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, पानी ऐसे बाहर निकलेगा फिर इस तरह से नीचे आएगा। द रीजन इज if the water is inside the container, the water is also applying the force or you can say the pressure on the walls of the container. ये कंटेनर की वॉल है, चलो अंदर की साइड है, तो ये जो पानी होगा ना वो उस पर प्रेशर लगा रहा होगा, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन होल करोगे तब वो इफेक्ट आपको दिखेगा फोर्स का, या फिर यू कैन से प्रेशर का। तो फ्लूइड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। प्रूव हो गया कि फ्लूइड्स भी प्रेशर लगाता है। अब to understand the next topic, which is somewhat related to this force only, but now we are talking about fluids. Swimming किया है कभी आपने? If you ever swim, तो पता होगा कि जब भी बॉडी पानी में होती है ना, या फिर आप स्विम कर रहे हो, तो आपका बॉडी आप लाइटर फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो। लेकिन जैसे ही बाहर निकलोगे अर्थ की सरफेस से, क्या लगेगा, भारी भारी फील होगा। चलो, ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस कि भाई जब भी पानी निकालते हो आप, इफ यू विल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, तो पहले बाल्टी अंदर जाएगी तब तो खाली है, बाहर आ रही है तब, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द वाटर इट फील्स हेवियर। इन द नेक्स्ट सिचुएशन आपने देखा होगा कि जो शिप्स है, बोट है, जो भी है, या फिर आयरन और स्टील की बनी होती है, वो स्टिल दे डजंट सिंक। क्यों भाई, डूब क्यों नहीं जाती?
आयरन और स्टील की बनी है, डूब जानी चाहिए ना। ह्यूमन बॉडी भी डूब जाता है इफ यू नॉट स्विम करेक्टली। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कुछ चीजें तैरती है, कुछ डूब जाती है, क्या रीजन है, क्या फोर्स है कि डूब नहीं रही? डूब जाती है वो तो चलो, नीचे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर क्यों रह रही है? आंसर इज बायोएंसी। बायोएंसी क्या है कि भाई जब भी ऑब्जेक्ट को आप पानी के ऊपर रखोगे ना, तो फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक फोर्स नीचे लग रहा है तो ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, मतलब नीचे से भी कोई फोर्स लग रहा होगा। व्हाट वाज दैट फोर्स? दैट इज कॉल्ड एज बायोएंट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट। सीधी सी बात है, ये ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ सरफेस है, उस पर नीचे से ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, मतलब इसको क्या कहूंगा मैं? अप थ्रस्ट। नीचे से ऊपर फिक्स है, अप थ्रस्ट लगेगा नीचे से ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ बायोएंट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस फेनोमेना। तो क्यों भाई कुछ चीजें डूब जाती है और कुछ चीजें नहीं डूबती? वाई फ्यू ऑब्जेक्ट्स सिंक एंड वाई फ्यू ऑब्जेक्ट फ्लोट्स? अब फोर्स के बारे में मैथ्स देखा जाए तो सीधी सी बात है, अगर नीचे वाला फोर्स जो नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज्यादा होगा, किससे? ये जो अपवर्ड फोर्स है बायोएंट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट के, तो उससे नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है, तो बॉडी डूब जाएगी। सीधी सी बात है ना। इन द अदर केस कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, सॉरी, उस पर नीचे वाला फोर्स क्या लग रहा है? कम, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है और अप थ्रस्ट ज्यादा लग रहा है, तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट तैरेगा, इट विल फ्लोट। मेथड फोर्स की एप्लीकेशन से अपन ये कह सकते हैं, बट द रीजन इज, एग्जैक्ट रीजन यू कैन से इज डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। क्या है डेंसिटी? डेंसिटी इज नथिंग बट द मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर्टिकुलर एक यूनिट वॉल्यूम में कितना उसका मास है, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। अब देखो ध्यान से, तो ये बायोएंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे या फिर डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो मतलब डेंसिटी पे। तो इफ यू टेक अ नेल, ठीक है, उस नेल को आप रख दोगे पानी के ऊपर, इट विल सिंक। द रीजन इज द डेंसिटी ऑफ नेल इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। उस पर्टिकुलर लिक्विड से अगर डेंसिटी ज्यादा होगी ना, तो आप वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डूबता देखोगे, इट विल सिंक। बट इफ यू विल सी द कॉक फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी? लेस कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर से जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा है ना, वो डूब जाएगा, और जिसकी भी डेंसिटी कम है वो तैरेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ अप थ्रस्ट। तो बायोएंट या फिर बायोएंट फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था, ठीक है, चलो थियोरेटिकली तो आपने मान लिया कि भैया अपवर्ड फोर्स लगता है, उसकी वजह से कुछ चीजें डूब जाती है, कुछ चीजें तैरती है। बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया Gmm/d², प्रेशर का मैग्नीट्यूड लिया अप थ्रस्ट, या फिर यू कैन से थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मूला है, तो आप वैल्यू फाइंड करोगे, ऐसा यूनिट यूज करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे। कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे? इसमें तो अब थ्रस्ट का कुछ ना कुछ चाहिए ना फॉर्मूला। तो दैट फॉर्मूला was given by a very famous name, that is Archimedes, called as Archimedes principle. अब क्या किया आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने? अगेन इट इज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। क्या डिस्कवर किया आर्किमिडीज ने? कि ये जो अपवर्ड फोर्स है ना, किस पे डिपेंड करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी उस पे। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, पानी की बाल्टी लो, पानी भरा हुआ है, जब भी मग या कुछ भी आप, इफ यू विल पुश सम ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द वाटर, तो पानी का लेवल ऊपर आता है, और थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जेक्ट बाहर भी आ सकता है। अगर वो डूबेगा नहीं तो उस पर अप थ्रस्ट लगेगा, बाहर आ जाएगा। और जब भी आप हाथ भी डालो पानी में, तो पानी का लेवल ऊपर आएगा, ठीक है। अब यही जो अप थ्रस्ट लग रहा है, जो बायोएंट फोर्स कहा ना अपन ने, तो बायोएंट फोर्स की वैल्यू या फिर अप थ्रस्ट की वैल्यू विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वाटर, यू कैन से द वेट ऑफ वाटर is displaced। समझो इसका मतलब। What is the statement of Archimedes principle? If an object is immersed fully or partially in a liquid, then liquid exerts an upward force which is equal to the weight of the fluid displaced। कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालोगे, ठीक है, तो ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना, वो इसकी वैल्यू कितनी होगी? पानी में डालोगे तो
फॉर एग्जाम्पल ये पानी का लेवल था, ठीक है। जैसे ही आपने पानी में कोई ऑब्जेक्ट डाला तो लेवल क्या हो गया, थोड़ा ऊपर, यहाँ से यहाँ आ गया लेवल। इतना जो लेवल चेंज हुआ है तो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, उसका जो वेट होगा ना दैट विल बी इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, दैट्स बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब यही याद रखना है तो चलो डेफिनेशन ऐसे याद नहीं रखनी है, मुझे भी डेफिनेशन देखो, यूएफ दैट इज अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, फॉर्मूला बना लेनी है। जैसे यहाँ पे भी एवरी ऑब्जेक्ट attracts every other object with a force directly proportional to the product of their masses inversely proportional to the square of distance between them। फॉर्मूला याद है तो भी बना सकते हैं, F इक्वल्स टू जी mm अपॉन डी स्क्वायर। ट्राई करना है कि फॉर्मूला है फिर शॉर्ट ट्रिक्स आप बनाओ, दैट इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जरूरी नहीं है यही याद रखो, कुछ और बन रही है तो आप यू कैन फॉर्म योर ओन ट्रिक, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आता है, तो जहां पे भी फ्लूइड रिलेटेड आप इंस्ट्रूमेंट्स या फिर शिप्स देखो, शिप्स डूबती नहीं है। अब शिप्स में भी देखना पड़ेगा ना कि उसका डेंसिटी उस तरह से होना चाहिए कि वो डेंसिटी क्या हो, पानी की डेंसिटी से कम, ज्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगा। दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज सो मेनी एप्लीकेशंस इन डिजाइनिंग द शिप्स, सबमरीन्स, आल्सो लैक्टोमीटर पता हो तो टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क, एंड द लास्ट इज hydrometer। Okay, so this is the whole chapter, you can say in one shot. I hope the chapter is clear to you. If you have any doubt you can ask me in the comment section in any of the chapter. Okay, thank you for watching the video. Goodbye. Physics works.